बिफोर वी मूव ऑन फर्दर एक छोटा सा रीकैप कर लें प्रॉक्सी का जितना अभी तक पढ़ा है और फिर आगे बढ़ते हैं। सो सेक्शन 105 एप्लीकेबल टू all companies, and a member who has two rights can appoint a proxy. A member who has two rights can appoint a proxy. The member who has the right to attend the general meeting as well as right to vote in the general meeting can appoint the proxy. If a preference shareholder is not having the voting right, he cannot appoint the proxy. If a preference shareholder has the voting right, he can appoint the proxy. If the articles of company prohibit the voting right of defaulting equity shareholder whose calls are in arrear, then he cannot appoint proxy. But if the articles do not prohibit the voting rights of the defaulting equity shareholders, then he can also appoint the proxy. So only those members can appoint proxy who have the right to attend as well as right to vote. And they can appoint proxy. Any person can be appointed as proxy, maybe a major, maybe a minor, and that person may be a member, may not be member in the company. And in case of the company limited by guarantee not having share capital, if the articles expressly allow the member to appoint the proxy, then he can appoint the proxy. A person can become proxy of how many persons? How many members? A person can become proxy of maximum 50 members at a time, but you have to take care that total voting, aggregate voting power in the hands of proxy shall not exceed 10%. But there is one exception. If a member is having more than 10% voting right and he appoints somebody as proxy, then proxy will have more than 10% voting right, but then that proxy cannot become proxy of any other member. Proxy cannot speak. Proxy cannot speak. Speak na मना है, speak ना मना है, लेकिन can proxy submit the views in writing? तो logically speaking proxy cannot submit the views in writing also, क्योंकि submitting the views in writing का मतलब he is obstructing the flow of the meeting. And हमने एक line बोली थी that submitting the views in writing tantamounts to speech, that was there. फिर हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है और उसमें मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो किसी दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, वेल नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है? सेक्शन 8 कंपनीज में। प्रॉक्सी फॉर्म कितना टाइम पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द शेड्यूल टाइम ऑफ जनरल मीटिंग। अगर आर्टिकल्स में 48 आवर्स को बढ़ाकर 72 आवर्स कर दें तो इट इज डीम्ड टू बी 48 आवर्स। आर्टिकल्स में अगर लॉन्गर देन 48 आवर्स लिखा भी होगा तो इट इज डीम्ड टू बी 48 आवर्स। तो आपको प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग से 48 घंटे पहले डिपॉजिट करना होता है। कैन द आर्टिकल्स डिक्रीज 48 आवर्स? Can we make it 2 hours before the general meeting? And the answer is yes, yes, yes. फिर हम बात करते हैं कि well, notice of AGM या notice of EGM में clear cut लिखा होना चाहिए with the reasonable prominence। क्या लिखा होना चाहिए? That a member who is entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy, and where it is allowed more than one proxy also to attend and vote on his behalf। अगर हम नोटिस में ना लिखें तो पेनल्टी है 5,000 रुपए की। क्या कंपनी प्रॉक्सीज इनवाइट कर सकती है? सुओ मोटो आंसर इज नो। अगर कंपनी के खर्चे पे, कंपनी के एक्सपेंस पे अगर आप प्रॉक्सी इनवाइट करते हैं, या तो प्रॉक्सी फॉर्म में किसी का नाम पहले से लिख कर देते हैं या फिर ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म के साथ लिस्ट ऑफ प्रोबेबल प्रॉक्सी साथ में देते हैं, तो the officer who is sending the invitation is liable to the penalty of rupees 50,000 अगर कंपनी के एक्सपेंस पे किया। लेकिन कौन से केस में पेनल्टी नहीं होगी? अगर किसी मेंबर ने खुद ही वो लिस्ट ऑफ प्रोबेबल प्रॉक्सी मांगी है और हमने उसी मेंबर को वो लिस्ट प्रोवाइड की है, तो कंपनी ने सुओ मोटो नहीं भेजी है, मेंबर के मांगने पे दिए, तो फिर पेनल्टी नहीं होगी। और अगर कोई जैसे हमने मुकेश अंबानी का एग्जांपल लिया था, मुकेश अंबानी अपने पर्सनल एक्सपेंस पे ऑल ओवर इंडिया सारे प्रॉक्सीज इनवाइट कर रहे हैं, तो तो उस केस में 50,000 की पेनल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो तो तब होती है जब कंपनी के एक्सपेंस पे इनवाइट किया हो। लेकिन अगर रेजोल्यूशन आपने पास किया है तो क्या उसके ऊपर परमानेंट स्टे या परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है? वो लिया जा सकता है अगर मेंस रिया है, अगर फ्रॉडुलेंट माइंड है एंड ऑल दैट। प्रॉक्सी फॉर्म सामने दिख ही रहा है, MGT 11। प्रॉक्सी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द शो ऑफ हैंड्स। प्रॉक्सी कैन पार्टिसिपेट इन पोल। प्रॉक्सी कैन पार्टिसिपेट इन द रिमोट ई वोटिंग, येस और नो? No, proxy cannot participate in the remote e-voting. Proxy cannot participate in the
पोस्टल बैलेट ऑल्सो, उसमें मेंबर खुद ही करेगा घर बैठकर, उसमें प्रॉक्सी का कोई सेंस है नहीं. कैन द प्रॉक्सी पार्टिसिपेट इन द ई वोटिंग इन द जनरल मीटिंग? आंसर इज यस. अगर उसको अपॉइंट करने वाला मेंबर वो था जिसने रिमोट ई वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर उसका प्रॉक्सी जो है कैन पार्टिसिपेट इन द ई वोटिंग इन द जनरल मीटिंग. अगर आपकी मीटिंग ट्यूसडे को हो रही है तो क्या संडे मॉर्निंग भी प्रॉक्सी एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आंसर इज यस. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में बहुत क्लियर कट लिखा है. और अगर मंडे को हो रही है तो मंडे को 10 AM है तो फिर प्रॉक्सी सैटरडे को. क्या एक कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती है? आंसर इज यस. एक कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती है. सेक्शन 105 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी. तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं. अगर फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी में मेंबर है तो फर्स्ट कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं. फर्स्ट ऑप्शन authorized representative under section 113 by passing the board resolution. Option 2, the first company can appoint proxy to attend the general meeting of second company. और वो proxy कैसे appoint करेंगे? या तो common seal लगाएंगे या कंपनी का authorized officer साइन करेगा. गड़बड़ मत करना इसके अंदर. हाँ, क्या मैं अगर किसी कंपनी का मेंबर हूं तो क्या मैं किसी कंपनी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं? आंसर इज नो. कंपनी को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते. अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में स्पेशल प्रॉक्सी फॉर्म दिया है तो क्या उस केस में कंपनी MGT 11 लेने से मना कर सकती है? क्या कंपनी कह सकती है हम तो अपने आर्टिकल्स वाला ही प्रॉक्सी फॉर्म लेंगे? आंसर इज नो. MGT 11 वाला प्रॉक्सी फॉर्म लेने से कंपनी मना नहीं कर सकती, इवन इफ कंपनी हैज इट्स ओन स्पेशल फॉर्मेट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म इन द आर्टिकल्स. एंड लास्ट वन ओवर देयर, इंस्पेक्शन. अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म से इंस्पेक्ट करना चाहता है तो उसको कंपनी को कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? 3 days एडवांस नोटिस बिफोर जनरल मीटिंग देना पड़ेगा. पहले इंटेंशन बतानी पड़ेगी मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ. और इंस्पेक्शन का टाइम कब शुरू होगा? 24 hours before the commencement of general meeting and up to the conclusion of general meeting. Remember that. और up to 24 hours का मतलब रात को 2 बजे नहीं आएगा कोई. उस जो 24 hours before general meeting है उसमें कौन सा वाला टाइम? 9 AM to 6 PM के बीच में. Remember that. और अगर फिर हमने जाते जाते बात की थी रेगुलेशन 52 के बारे में इन टेबल F, एंड दैट वाज अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम पहले लिखा है ऊपर, तो चाहे वो खुद आ जाए चाहे उसका प्रॉक्सी आए, उसका वोट वैलिड. और जिसका नाम दूसरे नंबर पे है उसका वोट वॉइड, अगर आपस में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है. और हमने बात की थी वो मिसेस ए मिस्टर ए, याद है? दोनों का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे है, दोनों ने अलग अलग प्रॉक्सी अपॉइंट किया, तो जिसका नाम ऊपर है मिसेस ए का उसके प्रॉक्सी का वोट वैलिड, मिस्टर ए का नाम नीचे है तो उसका वोट वॉइड. और अगर मिसेस ए का प्रॉक्सी आता है और मिस्टर ए खुद आ जाता है जिसका नाम बाद में है और दोनों पोल में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है तो भी मिसेस ए के प्रॉक्सी का वोट वैलिड और मिस्टर ए का वोट वॉइड पोलिंग में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होती है तो जिसका नाम नीचे है वॉइड. अब आई होप पूरा समझ में आ गया आपको. सो विल प्रॉक्सी के ऊपर कितना टाइम लगाया था हम लोगों ने?